دوسری سٹڈی کا جو ہے یہ 3 پارٹ ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی پارٹ 3. اس اضافی عہد کو حاصل کرنے کے بعد بنی اسرائیل نے کنعان کی سرزمین کو واپس لینا شروع کر دیا اور آخر کار انہوں نے اپنے اوپر بادشاہ مقرر کرنے کی کیا کی؟ خواہش کی. پہلا بادشاہ ساؤل تھا، پھر داؤد، پھر سلیمان. واضح رہے کہ تمام 12 قبیلے اور اجنبی یا غیر قومیں جو ان میں شامل ہوئے ان پر ان تینوں بادشاہوں کی حکومت تھی. ٹھیک ہے جی، یہ بات نوٹ رکھنی ہے آپ نے. لیکن پھر سلیمان نے اسرائیل کے لوگوں کو غیر معبودوں کی پیروی کرنے کی رہنمائی کی. یاد رکھے خدا نے کہا تھا کہ اگر وہ اس کی ہدایت پر عمل کریں گے تو وہ انہیں قوموں میں بکھیر دے گا. وہ انہیں کیا کرے گا؟ قوموں میں بکھیر دے گا. چنانچہ سلیمان کے مرنے کے بعد خدا نے اسرائیل کے 10 قبیلے سلیمان کے خادم یربام کو دیے. اس طرح اسرائیل کے تمام اقوام میں پھیلنے کا آغاز ہو جاتا ہے یا پرگندہ ہونے کا آغاز ہو جاتا ہے. آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے کیا شروع کی؟ بت پرستی. کیا شروع کی؟ بت پرستی. بت پرستی ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کو یہوہ سے دور کر دیتا ہے. خدا سے کیا کر دیتا ہے؟ دور کر دیتا ہے. اس موضوع میں آپ لوگوں کو ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ان 10 قبیلوں کی پرگندگی اور ان کا کھو جانا، یہ نوٹ کرنا ہے کہ اس کا سبب کیا تھا. اس کا سبب کیا تھا یہ ہمیں نوٹ کرنا ہے. ہاللیلویا. جب آپ یہ نوٹ کر لیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ بت پرستی کتنا شدید اور کتنا خطرناک گناہ ہے. بعض لوگ بت پرستی کے لیے اتنی سپورٹ کرتے ہیں اور بت پرستی کو بھی بت پرستی کہنا پسند نہیں کرتے. سارے وہ بت پرستی رہے ہوتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں کہ یہ بت پرستی ہے. ہم اپنی عقاسرائیاں، اپنے دلائل اور اپنے جو ہے مفروضے استعمال کر کے اپنی بت پرستی کو اور اپنی ناپاکی کو، اپنی نافرمانی کو صحیح ڈکلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم بھی خدا کی کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں. تو 10 قبیلے جو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیں ہیں، آج انہیں کھوئی ہوئی بھیڑیں کیوں کہنا پڑتا ہے؟ اس کے پیچھے سب سے جو بڑا گناہ ہے وہ کیا ہے؟ بت پرستی ہے. وہ کون سا گناہ ہے؟ بت پرستی ہے. سو لہٰذا ہمیں اس سبق سے ایک نصیحت حاصل ہونی چاہیے کہ بت پرستی ایک ایسا گناہ ہے جو قوموں کو پرگندہ کر دیتا ہے، انسان کو خدا سے دور کر دیتا ہے. اور آپ دیکھ لیں 2700 سے زیادہ سال ہو چکے ہیں، ابھی تک بنی اسرائیل کے 10 قبیلوں کا صحیح طریقے سے پتہ نہیں چل سکا. ملنا شروع ہو گئے لیکن صحیح طریقے سے پتہ نہیں چلا. ٹھیک ہے جی. سو بت پرستی سے دور رہنا چاہیے. چنانچہ یربام کو اسرائیل کے 10 قبیلے دے دیے گئے. یہ نوٹ کرنا دلچسپ ہے کہ یربام اصل میں افرایم کے قبیلے سے تھا. یربام کہاں سے تھا؟ یربام جو ہے وہ افرایم کے قبیلے سے تھا. پچھلی کلاس میں ہم نے سیکھا تھا کہ جو خدا نے چناؤ کیا برکت کے لیے، پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہم نے جب ابراہم کے 2 بیٹے تھے، پہلا اسماعیل اور دوسرا اسحاق. تو پلوٹا کون ہے؟ اسماعیل. آپ سب کی بلند آواز چاہیے. پلوٹا اسماعیل ہے، لیکن پلوٹے کی برکت کس کو ملی؟ دوسرے کو. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اسحاق کے ہاں جو ہے عیساؤ اور یعقوب پیدا ہوتے ہیں. تو پلوٹا کون ہے؟ لیکن پلوٹے کی برکت کس کو ملتی ہے؟ جو کہ دوسرا ہے، جو کہ بعد میں پیدا ہوا. ٹھیک ہے جی. پھر یعقوب کا بیٹا یوسف پیدا ہوتا ہے. یوسف کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوتے ہیں، افرایم اور منسی. تو پلوٹا کون ہے؟ منسی. لیکن پلوٹے کی برکت کسے ملتی ہے؟ افرایم کو. ایسا ہی ہے. اور یہ جو یربام ہے یہ کون سے قبیلے سے ہے؟ افرایم کے قبیلے سے. اور یہ 10 قبیلے کس کو دے دیے جاتے ہیں؟ افرایم کو دے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ ان پر کیا کرے؟ بادشاہی کرے، حکومت کرے. ٹھیک ہے. یہ پیچھے جو میں نے سٹوری آپ کو پڑھائی تھی وہ اسی وجہ سے پڑھائی تھی تاکہ آپ کو پتا چلے کہ بنی اسرائیل جب پرگندہ ہوئی ہے، جب وہ گمشدہ ہوئی ہے، تو وہ اس وقت حکومت کس کی تھی؟ اس وقت حکومت کس کی تھی؟ ٹھیک ہے جی. اب میرا خیال تصویر کلیئر ہوتی جائے گی. یربام جو ہے وہ
इफ्राइम के कबीले से है। इसके लिए देखें पहला सलातीन 11वां बाब आयत नंबर 26, लिखा है सरीदा के अफराइमी नबात का बेटा युरबाम जो सुलेमान का मुलाजम था और जिसकी मां का नाम जो बेवा थी सुरैया था, उसने भी बादशाह के खिलाफ अपना हाथ उठाया। युरबाम किस कबीले से है? अफराइम के कबीले से। ये आपको सलातीन की किताब उसके 11 की 26 में एविडेंस मिल जाता है। क्लियर हो गया जी, हालेलुया। सिर्फ चंद आयात के बाद हमें यह भी मालूम होता है कि वो यूसुफ के घर की पूरी मेहनत का इंचार्ज भी था। ठीक है जी, पूरी मेहनत पर वो मुकर्रर था। हमें यहां याद रखना चाहिए कि ये इफ्राइमी था, यूसुफ का बेटा, जिससे कौमों को हजूम बनाने का वादा किया गया था, यानी गैर कौमें। इन लोगों का मुकम्मल तौर पर खुदा की कौम से तल्लक नहीं है, लेकिन यहां से हम देखते हैं कि इफ्राइम के लिए पेशन गोई जाहिर होने लगी है। यहीं पर इसराइल दो हिस्सों में बट गया है। इसराइल एक शुमाली और एक जनूबी सल्तनत बन गया। शुमाली बादशाही वो है जो 10 कबीलों पर मुश्तमिल है और जो युरबाम के साथ चले गए थे, जिनको अक्सर सहीफों में इसराइल का घर या शाही इसराइल कहा जाता है। इसराइल का घर या शाही इसराइल कहा जाता है, या यूसुफ का घर या इफ्राइम कहा जाता है। इसको बनी इफ्राइम भी कहा जाता है, 10 कबीलों समेत। जब आप बाइबल में पढ़ते हैं ना बनी इफ्राइम, तो इससे मुराद 10 कबीले भी होते हैं, इससे मुराद। और जनूबी बादशाही वो है जो यहूदा और बनियामीन पर मुश्तमिल है। बनियामीन यहूदा में जम होने की वजह से सहीफों में उसको यहूदा का घर कहा गया है। यहूदा का घर, या उसे शाह यहूदा भी कहा जाता है, शाह यहूदा भी कहा जाता है। शुमाली सल्तनत ने बिलाखिर सामरिया में अपना दारुल हुकूमत कायम किया और फिर 200 साल से ज्यादा अरसे तक शुमाली बादशाहत ने यहोवा की नजर में सुलेमान के कामों से मुख्तलिफ कुछ नहीं किया। उन्होंने खुदा की हदायत की नाफरमानी की, गैर मबूदों की पैरवी की। बात यहां तक पहुंची कि खुदा ने उन्हें गैर कौम करार दे दिया। क्या करार दे दिया? बनी इसराइल को। किसको? इसके लिए देखें होशिया पहला बाब आयत नंबर 9। और उसने फरमाया कि उसका नाम लुआमी रखा के क्योंकि तुम मेरे लुआमी रखा क्योंकि तुम मेरे लोग नहीं हो और मैं तुम्हारा नहीं हूंगा। 721 कबल अज़ मसीह में खुदा ने असूर को सामरिया पर फतह दिलाई और शुमाली रियासत को असीर बनाकर असूर ले गया। इसके लिए देखें दूसरा सलातीन 17 बाब आयत नंबर 6। और होशिया के 9वें बरस शाह असूर ने सामरिया को ले लिया और इसराइल को असीर करके असूर में ले गया और उनको खिला में और जजान की नदी खाबूर पर और मादियों के शहर में बसाया। असूर का बादशाह फिर सामरिया के मुल्क में गैर मुल्कियों को लाया। बाद में उसने एक सरदार काहिन को, यानी एक प्रीस्ट को वापस भेजा ताकि उन्हें खुदा के तरीके सिखाए, उनको खुदा के तरीके सिखाए, यानी शरीयत सिखाए या उन्हें समझाए। इसके लिए देखें दूसरा सलातीन 17 बाब है, आयत नंबर 28 से लेकर तकरीबन ये 34 तक है। तो उन काहिनों में से जिनको वो सामरिया से ले गए थे, एक काहिन आकर बैते एल में रहने लगा और उनको सिखाया कि उनको खुदावंद का खौफ क्यों कर मानना चाहिए। इस पर भी हर कौम ने अपने देवता बनाए और उनको सामरियों के बनाए हुए ऊंचे मकामों के मंदिरों में रखा। हर कौम ने अपने शहर में जहां उसकी सुकूनत थी ऐसा ही किया। तो बाबलियों ने सुकात बनात को और हूतियों ने नीरगुल को और हमातियों ने इस्मा को और हवैयों ने निबहाज और तरताक को बनाया और सैफरियों ने अपने बेटों को आदार मलिक और अना मलिक के लिए जो सैफरियोम के देवता थे आग में जलाया। यूं वो खुदावन से भी डरते थे और अपने लिए ऊंचे मकामों के काहिन भी अपने ही में से बना लिए जो ऊंचे मकामों के मंदिरों में उनके लिए कुर्बानी गुजरानते थे। सो वो खुदावन से भी डरते थे और अपनी कौम के दस्तूर के मुताबिक जिनमें से वो निकल गए थे अपने अपने देवता की परस्तिश भी करते थे। आज के दिन तक वो पहले दस्तूर पर चलते हैं। वो खुदावन से डरते नहीं और ना तो अपने आइन व कवानीन पर और ना उस शरा और फरमान पर चलते हैं जिसका हुक्म खुदावन ने यकूब की नस्ल को दिया था, जिसका नाम उसने इसराइल रखा था।
खुदा ने इसराइल को यर्दन को पार करने से पहले जो है वो अजाफी अहद दिया है जी, हालेलुया। तो अजाफी अहद जब दिया तो साथ में खुदा ने खबरदार भी किया कि अगर वो ताबेदारी नहीं करते तो उनके साथ ऐसा ही होगा, लेकिन उन्होंने खुदा के उस अहद को नजरअंदाज कर दिया जिसमें यह कहा गया था कि खुदावन तुझको और तेरे बादशाह को जिसे तू अपने ऊपर मुकर्रर करेगा एक ऐसी कौम के बीच ले जाएगा जिसे तू और तेरे बाप दादा जानते भी नहीं, और वहां तू और मबूदों की तो महज लकड़ी और पत्थरें इबादत करेगा। तो ये नबूवत पूरी हुई। किसको बादशाह बनाया गया? यरोबाम को। और उन सबको कहां पहुंचा दिया गया? असूर में, क्योंकि इन सब ने क्या किया जी? बुत परस्ती की। प्रोफेसी पूरी हुई जो अस्तस्ना में खुदा ने वार्निंग के तौर पर दी थी, हालेलुया। सो खुदा ने इनको वार्न किया था, और वो वार्निंग जो है वो अगर इन्होंने, हम देखते हैं कि ताबेदारी हम देखते हैं कि जब इन्होंने नहीं की तो खुदा ने वैसे ही इनके साथ सलूक किया जो खुदा ने पीछे कहा था। यरोबाम जो है वो बादशाह बनाया गया। यरोबाम जब बादशाह बन गया उसके बाद लिखा है कि इनको कौमों में परगिंदा कर दिया गया। इनको कौमों में क्या कर दिया गया? परगिंदा कर दिया गया। सो खुदा ने वैसे ही इनके साथ किया। और इस तरह अब हम देखते हैं कि 721 कबल अज़ मसीह में ये इस्तस्ना की पेशनगोई का पूरा होना शुरू हुआ। हम देखते हैं कि इसराइल के लोग अब एक कौम नहीं रहे बल्कि कौमों में जम होना शुरू हो गए थे। यहां तक कि यसाया ने कहा, यसाया 7 बाब की 8 आयत में लिखा है, क्योंकि अराम का दारुल सल्तनत दमिश्क ही होगा और दमिश्क का सरदार रजीन, और 65 वर्ष के अंदर अफराइम ऐसा कट जाएगा कि कौम ना रहेगा। अफराइम क्या नहीं रहेगा? खुदा की कौम नहीं रहेगा। अफराइम अब खुदा के लोग नहीं रहे। शुमाली सल्तनत को असूर भेजने के लिए खुदा ने ऐलान किया, और खुदा ने यिर्मयाह के जरिए इफ्राइम यानी 10 कबीलों को तलाक दे दी। खुदा ने क्या किया जी? इसराइल को तलाक दे दी। यिर्मयाह 3 बाब की आयत नंबर 8 पढ़ दे। फिर मैंने देखा कि जब बरगिश्ता इसराइल की ज़नाकारी के सबब से मैंने उसको तलाक दे दी और उसे तलाकनामा लिख कर दिया, तो भी उसकी बेवफा बहन यहूदा ना डरी, बल्कि उसने भी जाकर बदकारी की। हाँ जी, तो बनी इसराइल को खुदा ने क्या दे दिया? तलाक। बनी इसराइल को क्या दे दी? तलाक। खुदा ने चाहा हम यहीं से अगली दफा शुरू करेंगे और तलाक के मैटर को बड़ा डीप सीखेंगे। बारूक हाशिम। खुदा आप सबको बरकत दे जी। शलोम अलैकुम।